Good evening, everyone, and welcome to today's session of NutriLift 360. I'm Ruchita, your host, and today we are going to discuss a very, very important subject. We've all heard that the most important meal of the day is breakfast, but why do we really say so? We're going to understand how does it impact our gut health and our weight, and what is the relation between the breakfast that we have and the cravings that we get throughout the day. All this and so much more. Let's listen to our experts and understand why morning nutrition is so important. To begin the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita. Good evening, everyone, and welcome to this exciting Monday session. Today, we are going to be talking about, gut health, morning nutrition, and why these are so important for your overall health. Now, there is something known as habits, and it is important to form a good habit. In order to form a good habit, you need to do it repeatedly over several weeks so that starts to become like second nature. It is not always possible in today's day and age to do everything right about health, but at least if you're in a community like this and you're aware as to what is a difference it would create with eating, say, for example, eating junk food and eating good nutritious food. All these are not easy to understand. And hence, staying on the community, okay, and these issues, these sessions being repeated over and over again, creates some effect in your mind where it helps you to make informed decisions in your health. Let's say, for example, that if you're eating sweets or desserts, okay, we have said it over and over again that, that's really not good for your health. So one would eat, in smaller quantities. And that brings me to this basic idea. Do you realize that why dessert spoons are always made way smaller than the normal spoons? Because by default, they are telling you that this is the bad stuff to eat, so eat it in the right quantity. Okay? So you're very lucky today to hear from Raj, okay, who was a very top level executive, okay, and working very hard in his corporate career, where he had no time for all these health issues. And when he decided to make a change, he became a master at what one should be eating and what one should not be eating, what is the whole concept of morning nutrition, what is the whole concept of gut health. So listen to Raj very carefully because what he has to share will have a significant impact on your overall health. Over to you, Raj. Thank you. Thank you very much, Farooq. And good evening, everybody. Wish you all a very happy Republic Day. And today, as rightly said by Farooq, like we are talking about health, and health is all about building the right habits. And आज हम एक बहुत बेसिक हैबिट के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज मॉर्निंग न्यूट्रिशन. नॉर्मली ऐसे सेशंस में मैं ये बोलता हूँ कि पहले मुझे ये चीज़ नहीं पता था या मैं ये गलत करता था. द वन थिंग दैट आई यूज टू ऑलवेज डू करेक्ट वाज हैविंग अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑन टाइम रेगुलरली राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड. दिस वाज अ बेसिक प्रैक्टिस इन आवर हाउस. लाइक आप सुबह कितने भी बजे घर से जा रहे हो, बट माई डैड ऑलवेज इंश्योर्ड दैट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट. एंड ये पुरानी कहावत है कि अगर आप कहीं भी घर से निकल रहे हो तो खाली पेट मत निकलो, खा के निकलो. बट इसके रिलेवेंस है, राइट. एंड आज हम देखेंगे दैट व्हाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन इज सो सो इम्पॉर्टेंट. Of all the subjects, finally in India, they realized that this is, of all the bigger umbrella, this is the most important subject to focus on. And gradually, this was getting ignored.
This was taking a back seat. And finally, everybody, even the doctors, the scientists, I mean, everybody realized that this is the most important subject. So why morning, like आप देखेंगे, let's बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगा, और आपके शायद बहुत सारे पॉइंट्स भी आज कवर हो जाएंगे यहाँ पे, जो डाउट्स होते हैं हमारे, लाइक वन सेकेंड, या सो व्हाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन इज सो इम्पोर्टेंट, यू नो ब्रेकफास्ट बेसिकली, उसके नाम में ही है कि इट इज ब्रेकिंग द फास्ट। जो पूरी रात का जो हम एक फास्ट मोड, जो फास्टिंग पे हम रहते हैं, मतलब जितना टाइम आप सो रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, basically you are breaking the fast, and hence your morning breakfast needs to be nutritious. Start strong with a nutritious breakfast. It powers you through the day, no matter what lunch or dinner brings. So you're kick starting your day, and breakfast is the most important meal of the day. So आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, वो किक स्टार्ट हो रहा होता है। आपका जो प्रोटीन बैलेंस इन द बॉडी है वो नेगेटिव है। आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी और जो ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल है, अगर आप देखेंगे, सो इट डिपेंड करता है कि आप रात को आपने कितने बजे खाए, आप क्या डिनर किया, आप कब खाए। ये सारे फैक्टर्स डिफाइन करता है दैट वाई मॉर्निंग किक स्टार्टिंग अ डे इन अ न्यूट्रिशियस वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो गट हेल्थ है, जो गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं, उसकी हेल्थ जो है वो डिफाइन करता है कि आपका मॉर्निंग न्यूट्रिशन कैसा है, और उसके बेसिस पे ये सारे पैरामीटर्स आपके हेल्थ में कैसे होंगे, राइट। वाई शुड वन ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग? नाउ, किंग का मतलब ये नहीं है कि अगर आप 3 पराठे खाते हैं तो आप 5 पराठे खाइए, या अगर आप 4 इडली लेते हैं तो आप 6 इडली खाइए, ज्यादा खाइए। इट इज नॉट, इट डजेंट मीन दैट। what it means is your breakfast needs to have the right set of nutrition, multivitamin, mineral, protein, fats, अच्छे वाले जो फैट्स हैं, फाइबर, ये सारे प्रॉपर न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। मुझे ऐसे लगता था पहले कि किंग का मतलब है कि जो आपकी एपेटाइट है आप उससे ज़्यादा खा लो, और शायद इसीलिए जो होटल्स में जो सुबह जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो होता है वो पूरा एक एलैबोरेटेड होता है, एंड वन नीड्स टू ट्राई एवरीथिंग एंड ईट एवरीथिंग, राइट। ये इसका ट्रू डेफिनेशन नहीं है। द ट्रू डेफिनेशन इज द ब्रेकफास्ट नीड्स टू बी न्यूट्रिशियस। इसका फायदा क्या होता है, इज ऑफन कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, एंड फॉर गुड रीजन। इट एनकरेजेस हेल्दियर ईटिंग थ्रू आउट द डे, breaks the overnight fasting period, boosts your energy levels and fuels up your cognitive power, replenish your supply of essential nutrient and other after the overnight fasting. So nutrition के एंगल से आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस वन पॉइंट, दैट आप इसको जितना भी स्टडी करोगे आप देखोगे कि ये मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड मील ऑफ द डे है। कोई एक चाय दो रस्क ले रहा है, मतलब आई मीन दिस हैज बिकम लाइक अ प्रैक्टिस इन एनीवेयर इन इंडिया। दो बिस्किट, एक 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 रस्क, थोड़ा सा चाय, थोड़ा सा कॉफी। पीपल स्टार्ट देयर डे लेट। आई मीन स्टेइंग इन दिल्ली एनसीआर, एंड बिकॉज ऑफ द विंटर्स पीपल टेंड टू स्टार्ट देयर डे वेरी वेरी लेट, एंड हेंस कहीं ना कहीं वो ब्रंच का कॉन्सेप्ट आ गया है। नाउ देखो, ये सारी चीजें कमर्शियल कन्वीनियंस पे डिफाइन की गई है। ब्रांच, कमर्शियल कन्वीनियंस, राइट। इट वाज नेवर डिजाइंड कि आप कैसे उन चीज़ों को, आपके हेल्थ का उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबली 15 to 30% पीपल स्किप न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। लास्ट टाइम आई वॉज इंटरेक्टिंग विद अ जेंटलमैन इन पुणे, उसका ब्रेकफास्ट 12 बजे उसके ऑफिस में होता था, 2 समोसा एक चाय, एंड ही वॉज लाइक मोर देन 100 kgs इन वेट। इसका रीजन क्या है? न्यूक्लियर इंडिविजुअल जॉइंट कल्चरल जो हम रहते हैं, कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है। पीपल आर हैविंग अ हेक्टिक लाइफस्टाइल। वो बनाएगा कौन? सुबह हम एनी विच वेस अपने काम पे जाने के लिए लेट हो रहे होते हैं, तो भाग दौड़ में कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट इन द मॉर्निंग, दिस इज वन बिग रीजन। मोस्ट ऑफ द पीपल से आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग इन द मॉर्निंग, राइट। सो ये हैबिट्स है। नाउ कुछ ये देखिए, लेट्स सी सम फाइंडिंग्स नाउ। सम की फाइंडिंग्स ऑफ द इंडियन ब्रेकफास्ट हैबिट स्टडी सजेस्ट, लाइक जिसमें 3600 लोगों का सैंपल लिया था, दैट 1 in 4 claim to skip breakfast. 60 to 80% subjects in the metro cities having inadequate breakfast. प्लेसेस लाइक मुंबई, चलते चलते थोड़ा सा वड़ा पाव खा लिया या सैंडविच खा लिया, एक अंडा और थोड़ा सा टोस्ट ले लिया ना। अगर आप ब्रेकफास्ट को भी देखोगे तो पहले लोग खा नहीं रहे हैं, जो खा रहे हैं वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे। कल सुबह अपने आप से ये सवाल पूछ के देखेगा, इज दिस इनफ और इज दिस राइट, व्हाट यू आर गोइंग टू हैव टुमारो मॉर्निंग,
And I'll suggest plan your tomorrow morning breakfast before you go to the bed tonight, right? Females tend to skip their breakfast comparatively more often than males, and बहुत obvious है because बहुत सारे लोग होम मेकर होते हैं और पूजा किए बिना वो खाते नहीं है। पूजा आप तब करते हो जब दिन का सारा काम खत्म हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि जब तक हम पूजा नहीं करेंगे हम ब्रेकफास्ट नहीं खाते, और बाय द टाइम आपका पूजा होता है बहुत लेट हो चुका होता है। सो ये की फैक्टर्स है जो कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज ऑफ विच आर न्यूट्रिशन गेट्स इम्पैक्टेड, बिकॉज ऑफ विच आप देखोगे कि अभी क्या क्या हेल्थ कॉन्सिक्वेंस होता है। स्किपिंग ब्रेकफास्ट हैज ऑल्सो बीन फाउंड एसोसिएटेड विद ग्रेटर टोटल एनर्जी इंटेक फ्रॉम एडेड शुगर्स, अ लोअर इंटेक एंड अ लोअर हेल्दी ईटिंग इंडेक्स। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, यू विल टेंड टू ईट, आगे आप देखेंगे हाई शुगर फूड्स और बाकी हाई कार्ब्स फूड आप बाय डिफॉल्ट आप क्रेव करोगे उन चीज को लेने के लिए। Not having nutritious breakfast has impact on your three P's: physical, physiological and psychological। ये तीन इम्पैक्ट आप देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों के ऊपर जब हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो कैसे इसके ऊपर हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। नॉट हैविंग न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट एंड इम्पैक्ट ऑन आवर फिजिकल हेल्थ, उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? हमारी एनर्जी लेवल मॉर्निंग में लो होती है। बहुत बार ऐसा फील करेंगे आप, सुबह उठने के बाद भी आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी लेवल जो चाहिए दिन को स्टार्ट करने के लिए वो एनर्जी लेवल नहीं मिल रही है। एंड मेनली इट इज़ बिकॉज ऑफ स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट और नॉट हैविंग द राइट ब्रेकफास्ट। इंक्रीज इन बॉडी वेट, इंक्रीज इन फैट डिपोजिशन, राइट? ये कुछ ड्रॉबैक है जो इसका होता है। कुछ बेनिफिट्स क्या है आपके, अगर आप ले रहे हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी, आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड होगा। वेट रिडक्शन में इसका बहुत बड़ा मदद मिलता है, रिड्यूस फैट डिपोजिशन में इसका बहुत बड़ा मदद मिलता है। सो टाइमली खाने से वेट लॉस भी होता है। द मोर यू नॉट हैविंग न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट द फैटर यू गेट, यू नो, सॉरी, ब्रेन को ये मैसेज जाता है जब आप लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, इफ यू डोंट हैव योर ब्रेकफास्ट इन लेस देन 2 आवर्स व्हेन यू गेट अप, ब्रेन का मैसेज जाता है कि स्टाफ सिचुएशन होने वाली है, खाना नहीं मिलने वाला है, बॉडी टेंड्स टू स्टोर मोर फैट इन दैट प्रोसेस। सो कई लोग जिनको लगता है कि हम तो खाना ही नहीं खा रहे या तो हम कम खा रहे हैं, जब आप उसको कम कर दे तो स्पेशली इन द मॉर्निंग यू विल सी दैट यू टेंड टू गेन मोर वेट कंपेयर टू अगर आप खा रहे होते तो शायद आप नहीं कर रहे होते। और ये मैं नहीं, आप कोई भी जर्नल उठा के देख लीजिए, ये एक फैक्ट आपको हर जगह मिलेगा। 2 घंटे के अंदर सुबह उठने के अंदर यू नीड टू हैव योर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, राइट? द ब्रेन विल कमांड यू टू चूज हाई फैट एंड हाई शुगर फूड्स एज कंपनसेशन। बाय डिफॉल्ट ये होगा, आप इसको बहुत दिन तक फाइट नहीं कर सकते। What are the physical benefits you could experience with having regular nutritious breakfast, right? Some of the visible benefits जो आप देखोगे, आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी। एंड ये आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है जब आप अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे खाएंगे। हेल्दी हैबिट, आप कभी भी ना, वेन एवर इन डाउट कंपेयर योर सेल्फ टू अ एनिमल इन द जंगल। आप उसको देखिए, वो शाम को नहीं खाते, सनसेट के बाद आप उनको नहीं देखेंगे खाते हुए। दे डोंट हैव एक्सेस टू स्विगी एंड जोमेटो कि वो मिडनाइट मील खा रहे हैं, लेकिन जब आप उनको मॉर्निंग में देखेंगे तो दे स्टार्ट देयर डे वेरी वेरी अर्ली एंड दैट्स हाउ। सो वेन एवर इन डाउट ऑलवेज रिलेट योर सेल्फ टू अ एनिमल इन द जंगल, राइट? हेल्दी हैबिट, मोस्ट हेल्दी हैबिट, टेक अ वॉक आफ्टर एवरी मील इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। फारूक इसको कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं कि अगर आप अपनी डायबिटिक वैल्यू को कंट्रोल करना चाहते हैं, या अगर आप वेट मैनेजमेंट की तरफ देख रहे हैं, या अगर आप फिट भी रहना चाहते हैं, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को भी आप देखना चाहते हैं, सो हैव अ मील आफ्टर एवरी, गो फॉर अ वॉक आफ्टर एवरी मील। A couple of years ago I had visited Australia, एंड वहाँ पे मैं सभी को एकदम फिट देख रहा था। मतलब नॉर्मली जो मैं गुड़गांव में कॉर्पोरेट लोगों को देख रहा हूँ, कंपेरेटिवली देयर फिटनेस लेवल वाज मच बेटर। एंड आई वाज सिटिंग नियर द सिडनी हार्बर फॉर लंच, और लंच में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एकदम वो शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में जॉग कर रहे थे वहाँ पे। एंड थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये ऑफिस नहीं है, ये जॉगिंग एरिया है, क्या है ये। बाद में जो मेरे लोकल होस्ट है मुझे बता रहे थे कि properly people after their meal they go for a run, and after the run they'll take a shower in the office area and then they'll change and they'll continue working. That's the reason their fitness level was so high. So it is very very important to go for a meal after, go for a walk after every meal. It's very important, especially after the breakfast.
इसके फायदे क्या होंगे? इम्प्रूव डाइजेशन, वॉकिंग आफ्टर मील कैन हेल्प यू स्टिमुलेट डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स। बहुत बार ये डाउट है कि खाने के बाद वॉक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपका डायबिटिक वैल्यू हाई आ रहा है, ये सबसे आसान सजेशन है, और ये साइंटिफिक है, ये प्रूवन है, और ये हमें करना चाहिए। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द ब्लड शुगर कंट्रोल लेवल। Walking after a meal can help you to regulate the blood sugar level, help in maintaining healthy weight, reduce heartburn and indigestion, improve mood and energy. Mood swings बहुत कॉमन है, ये होते जा रहा है, खास करके बच्चों में भी। आप छोटे बच्चों को देखेंगे, वो चिड़चिड़े रहेंगे, इरिटेटेड बैठे रहेंगे, और कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी जब आप उनकी इम्प्रूव करेंगे, आप देखेंगे उनके फिजिकल हेल्थ में बहुत फर्क आप देखोगे। राइट? व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग? राइट नाउ, क्यों इंपॉर्टेंट है टाइम टाइम पे खाना खाना? एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे सवाल पूछा कि 3 मील खाना है, आप कभी भी खा लो, फर्क क्या पड़ता है? तब तक मैं ये स्लाइड नहीं देखा था। तो मुझे लगा कुछ तो इसका साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट इट इज। बिकॉज अगर आप अपने बॉडी को देखेंगे तो जो सर्काडियन रिदम है, आप अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे तो देर इज अ एक्टिविटी फेज एंड देर इज अ रेस्टिंग फेज। नॉर्मली हमें एक्टिविटी फेज में खाना खाना चाहिए, रेस्टिंग फेज में नहीं खाना खाना चाहिए। लेकिन और उसी के हिसाब से ये अलग अलग बॉडी, ये जो हार्मोन है, ये रिलीज करता है, एंड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस ऑल दिस एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी। नाउ ये डिफाइन है बाय बर्थ, ये डिफाइन है हमारे को। लेकिन हमने क्या किया है, जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, कहीं ना कहीं हमने उसको अपने हैबिट के वजह से डिस्टर्ब कर दिया है, और उसके वजह से जो इम्पैक्ट आता है, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज। यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल, कॉर्टिसोल को जब बॉडी रिलीज करते हैं, देयर इज अ टाइम फ्रेम फॉर दैट। ये अलग अलग जो आप देख रहे हैं, ये बॉडी को रिलीज कर रहे हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में, उसका रोल है जो बॉडी में प्ले करता है। लेकिन जब आप ही अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर डिस्टर्ब कर दोगे, तो इमेजिन करिए आपके मेटाबॉलिक हेल्थ, आपका ओवरऑल हेल्थ, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये सारे चैलेंजेस आने लगते हैं। नाउ जो चीज आपको अपनी बॉडी से कंट्रोल करना था, नाउ यू गो, आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है मेडिकल पिल्स के ऊपर, जो आपको खाना पड़ता है उन चीजों को बैलेंस करने के लिए। So, like as I said, in the activity phase, it is very important to choose like what time your breakfast, your lunch, and your even your dinner before the sunset. It is very important to define this. और वो चीज आप खाते हैं, तो circadian rhythm is a form of time restricted feeding in which a person eats food across a span of hours in the earlier part of the day. राइट? क्वाइट लॉजिकल कि अगर वो रेस्टिंग फेज है, उस समय बॉडी को फूड की जरूरत नहीं है। अगर वो एक्टिविटी फेज है, तो बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, मोर वेयर एंड टेयर विल हैपन इन योर बॉडी, हेंस द बॉडी नीड्स मोर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द आवर। राइट? डीरेल सर्काडियन रिदम क्या होगा? डीरेल्ड का मतलब है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कुछ और कह रही है, आपका क्लॉक कुछ और ही चल रहा है। क्या होगा? आप सबसे पहले कॉमन डिजीज, फैटी लिवर डिजीज शुरू हो जाती है। फैटी लिवर का मतलब क्या है? बॉडी को जो बनाने हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर लीवर ही इंपैक्टेड है, तो कोएंजाइम Q10 बना ही नहीं पाएगा। अगर वो कोएंजाइम Q10 बना ही नहीं पाएगा, आपकी सेलुलर एनर्जी ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगी। राइट? न्यूट्रिशन जो फूड में से एक्सट्रैक्ट करना है, एक तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है, नहीं मिल रहा आज की तारीख में। जो बचा कुचा है, वो बॉडी न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है, अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। सो ये सारे इश्यूज शुरू होते हैं अगर आपका डीरेल्ड सर्काडियन रिदम होगा। फैटी लिवर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, वेट गेन, इन्फ्लेमेशन। राइट? when should I eat? A circadian view of the food intake and the metabolic regulation। बेसिकली ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से रिसर्च करके ये सारी चीज़ें आती है। बट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस शुरू हो जाते हैं जब हम सर्काडियन रिदम को फॉलो नहीं करते। What happens to your body if you do not eat breakfast properly? Body protest against not having nutritional breakfast. Cardiovascular system go on strike. Now, this is how the impact is. Non-nutritional breakfast, जो cardiovascular strike का मतलब क्या है? Non-nutritional breakfast, HPA excess, non-stress hyperactivity, right? Blood pressure increased, abnormal lipid metabolism and cardiovascular diseases. This is what happens अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं है। और अगर आप ये सारे डिजीज को देखोगे तो बहुत कॉमन सुनने में मिलता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर गोइंग हाई सो रैपिडली नाउ। एंड बहुत सारे, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैव नाउ स्टार्टेड फोकसिंग ऑन होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम। ये बहुत बड़ा
इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड वी आर सो फॉर्चुनेट दैट आपको ये सारी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, वहाँ पे जो आपके हेल्थ कोचेस हैं वो आपको टाइम टू टाइम इन चीज़ों के ऊपर गाइड करते हैं। व्हेन यू बिल्ड द राइट हैबिट्स, दैट्स फारूक वाज सेइंग, हैबिट्स जब आपके सही हो जाए तो आप देखेंगे यू हैव टू नेवर वरी अबाउट दिस लाइफस्टाइल चैलेंजेस, यू नो। Risk of not having a nutritional breakfast, your risk of death increases by 1.2 times. Your risk of death from the cardiovascular diseases is increased by 1.87 times. Risk of death from stroke increases by 3.39 times. What happens to your body if you do not eat breakfast properly? Your body protests against not having nutritional breakfast, and it tends to gain more weight. सो कहीं तो आप डाइट कर रहे हो और डाइट में आप वो ले नहीं रहे, खाना नहीं टाइम पे खा रहे हैं। एंड यू नो, वन थिंग दैट आई वुड लव टू कमेंट ओवर हियर, अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर रहे हैं तो आप उसकी टाइमिंग को ऐसे रखिए एटलीस्ट कि आपको ब्रेकफास्ट स्किप ना करना पड़े। इट इज़ नॉट अ हेल्दी, यू नो, समटाइम्स ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आप वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी ऑर्गन हेल्थ और आपके हेल्थ जो बॉडी हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। We tend to ignore the rest of the parameters of our organ health just in the lieu of losing weight, you know. So इसीलिए होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये वेट लॉस या जो भी चीज आपका जो भी हेल्थ गोल है वो तो फोकस कर रहा है, बट उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल वेल बींग को भी फोकस किया जा रहा है, आपकी ऑर्गन हेल्थ, आपकी बाकी सारे पैरामीटर्स पे फोकस किया जा रहा है कि वो कैसे हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि लोग वेट लॉस के पीछे जा रहे हैं, वेट तो लूज हो जाता है बट उसके वजह से बाकी 10 अदर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, और ये उसी का नतीजा होता है जब आप एक होलिस्टिक हेल्थ पे फोकस नहीं करते। इट ऑल्सो, नॉट हैविंग प्रॉपर ब्रेकफास्ट ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। आप देखेंगे इधर दर्द है, इधर दर्द है, कहीं ना कहीं वो दर्द होते ही रहती है। द मेन रीजन इज इन्फ्लेमेशन फॉर दैट। एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए तो सबसे मेन चीज़ है जो आपके न्यूट्रिशनल इनटेक में होना चाहिए, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो अगर वो रहेगा तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। बॉडी प्रोटेस्ट अगेंस्ट नॉट हैविंग न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट बाई लीडिंग टू इम्पेयर्ड ब्लड शुगर लेवल एंड फैटी लिवर। नाउ फर्ज करके देखो एक छोटा सा हैबिट और उसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंस, और इन कॉन्सिक्वेंस को कंट्रोल में करने के लिए इमेजिन करिए आपको कितनी सारी दवाई खानी पड़ेगी, और वो दवाई खाने के वजह से जो साइड इफेक्ट्स होंगे आप उसके कॉन्सिक्वेंस को इमेजिन करके देखिए। सो यू नो इट इज लाइक दैट विशियस सर्कल कि आप एक चीज को गलत कर रहे हो एंड इट इज लीडिंग यू टू 10 अदर रॉन्ग थिंग्स दैट कैन हैपन विद यू। So, type 2 diabetes and fatty liver, hormonal imbalance, inflammatory response, metabolic changes, insulin resistance होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें ना इमेजिन करिए, एक छोटी सी हैबिट हैज़ लेड यू टू सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन लाइफ। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स इसका क्या होता है? इंटरनल बॉडीली फंक्शंस, बेसिकली आपका शुगर बैलेंस मेंटेन रहता है, आपका मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छा होता है, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होता है, आपके जो मसल मास है वो इंप्रूव होएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ केजीज को मेजर कर रहे हैं, अरे मेरा केजी कम हो गया। एंड कई बार मेरे भी घर में ये डिस्कशन होता है, एंड वी फोकस दैट यू नो केजी इज इंपॉर्टेंट, बट केजी के साथ साथ आपका ऑर्गन हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मसल परसेंटेज कितना है, आपका फैट परसेंटेज कितना है, आपका विसरल परसेंटेज कितना है, आपका सबक्यूटेनियस फैट लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें भी समझना उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कम्युनिटी दैट इट फोकसेस ऑन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ। तो अगर आप एक चीज़ को ठीक करने आए हैं, आप देखेंगे ग्रेजुअली आपके बाकी सारे पैरामीटर्स भी अलाइन हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। आपका हार्मोनल बैलेंस बहुत सही रहेगा अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, सॉरी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, राइट? सो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आप ब्रेकफास्ट सही नहीं कर रहे हैं तो नॉट हैविंग न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट विल लीड टू शॉर्ट टर्म एनर्जी सप्लाई। बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, लेकिन उसको वो एडिक्वेट नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, एंड जो आपकी अलर्टनेस लेवल है वो आप देखेंगे लो होगा। कई बार आप देखेंगे कि आप मेंटली फटीग फील कर रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग में, डिस्पाइट यू फील कि यू हैड अ गुड स्लीप एंड ऑल द स्टफ, बट यू आर फीलिंग फटीग फ्रॉम इनसाइड, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर इट, राइट? इसके कुछ मेंटल वेलबींग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा है तो आपकी मेमोरी इंप्रूव रहेगी, कॉग्निशन आपका अच्छा रहेगा, मेंटल क्लैरिटी रहेगा, आपके मूड अच्छे रहेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल लो रहेंगे।
अक्सर मैंने देखा है जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब किया करता था तो आई यूज टू देयर यूज टू बी समटाइम्स दैट आई यूज टू बी वेरी वेरी इरिटेटेड। और जब मैं उसको इवैल्यूएट करता था तो अगर मेरे को भूख लगी है और अगर मैंने जंक खाया है तो मेरा मूड अच्छा नहीं होता था, बिकॉज यू नो द बॉडी इज नॉट गेटिंग द न्यूट्रिशन दैट इट नीड्स। सो दिस इज इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर मूड एंड योर स्ट्रेस लेवल्स। बेनिफिट यू नो, ये बहुत बार ये बोला जाता है यार स्ट्रेस को आप कैसे कम कर सकते हो, स्ट्रेस तो रहने ही वाला है, बट अगर आप देखिए तो आपका हैबिट ही है विच इज लीडिंग यू टू टूवर्ड्स स्ट्रेस, राइट। सो बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग न्यूट्रिशन अगर आप उसको देखें, आपके फिजिकल पे हमने बात कर लिया, आपके फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल पे बात किया है, फिजियोलॉजिकल पे हमने बात किया है, आपके मेंटल वेल बीइंग के ऊपर हमने बात किया है कि कैसे वो इंप्रूव करता है, ऑप्टिमम एनर्जी लेवल्स, मैनेज वेट, बिल्ड मसल मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, बेटर मेटाबॉलिक हेल्थ, गट हेल्थ, वैस्कुलर हेल्थ, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड सटाइटी। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आप देखेंगे कि जो आपको इससे फायदा होता है, राइट। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द ईव, लाइक शाइन एवरी डे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट द मॉर्निंग न्यूट्रिशन। अगर आप इसको देखेंगे तो जब आप इसको फॉलो करते हैं, व्हाट यू विल सी इज दैट यू विल सी अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर हेल्थ। एंड अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होएगा, बाई डिफॉल्ट यू विल टेंड टू ईट द इवनिंग मील बिफोर द सनसेट, and you will see some very very significant impact on your health. So shine, start every day with gratitude and optimism, have your nutrition on time, set clear intentions, you know, you need to have a clear goal। और इस प्रोग्राम में हम बहुत क्लियरली इस बारे में बात करते हैं। ये पूरे प्रोग्राम का, जैसे रुचिता स्टार्टिंग में जब अभी इंट्रोडक्शन दे रही थी तो रुचिता जैसे शुरू में बोल रही थी कि यू नो द प्रोग्राम इज हर घर तंदुरुस्त, हर घर मेडिसिन फ्री। The core intention of this program is, can we help people to live a healthier life? Can we help people to live a medicine free life? Can we set the right goals for them so that they have a better health and a lifespan both? कई बार क्या होता है, हम लाइफ स्पैन को तो मेडिकेशन के दम पे आगे लेके जा रहे हैं बट हेल्थ की क्वालिटी डिटोरिएट होते जा रही है। सो यू आर लिविंग अ लाइफ, बट वो लाइफ यू नो इट्स सेड दैट लिविंग लॉन्गर एंड डाइंग शॉर्टर, और प्रोबेबली डाइंग लॉन्गर एंड लिविंग शॉर्टर। सो इसका मतलब है कि आपकी जो क्वालिटी लाइफ है वो तो छोटी होगी, लेकिन बट घसीट के उसको कैसे कैसे हम लेके जा रहे हैं। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोग्राम इज इट हेल्प्स यू टू हैव अ क्लियर सेट गोल फॉर योर सेल्फ। आई होप यू पिक्ड अप समथिंग न्यू टुडे, something, a key point which you feel is relevant and valid for you, probably which you will, the program will help you to incorporate in your daily habits, and exercise every day, because that's the main thing. Farooq always says, you rest, you rust, you rust, you die. So don't rest, right? Go for proper exercise. So yeah, with this, thank you, and we invite you for the next सेशन, जो कि ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होएगा। आप एक अलग एक्सपर्ट से सुनेंगे ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए। सो या, थैंक यू, ओवर टू रुचिता। Thank you so much, Raj. You've explained that wonderfully. I think it's very, very clear to start our day well, to have everything in order, and to have optimal nutrition. With that, ladies and gentlemen, we come to an end of this session. You've been a great audience. And like Raj said, we'll meet again on a very important subject. Let's make sure we call in a lot of our families and friends and join in big numbers. Until then, good night. Stay safe.